بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بے شک الصفا صفا والمروہ اور مروہ من سے شاعر اللہ اللہ کے فا پس من جو کوئی حج کرے البیتا گھر کا بیت اللہ کا او یا اعتمرا عمرہ کرے فا پس لا نہیں جناح کوئی حرج علیہ اوپر ہی اس کے علیہ اس پہ ان یہ کہ یطوفا وہ طواف کر لے بہما ان دونوں کا یا ان دونوں کے ساتھ وہ اور من جو شخص تطوع خوشی سے کرے خیرن کوئی بھلائی یا زیادہ کر دے کوئی نیکی فاپس ان بے شک اللہ تعالی شاکرن بہت قدردان علیم خوب جاننے والا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما پس جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کی طرف کے ساتھ طواف کرے یعنی سعی کرے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ جو شخص بھی خوشی سے کوئی نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ خوب قدر کرنے والے قدردان اور خوب جاننے والے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 ہے جس میں اللہ رب العزت حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد دہانی اور ان کے صبر ان کے استقلال کے اوپر ان کو ملنے والے انعام کا گویا کہ ضمن ذکر فرما رہے ہیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہیں اب یہ سب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے شاعر کیوں بنے یہ صفا اور مروہ یہ تو دو پہاڑیاں ہیں اور کسی بے جان چیز کی تعظیم کرنا یا کچھ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یادگار اور اتنی پاپولر کیوں ہوئی اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو پتہ بھی ہوگا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں کے قریب والی جگہ پہ رکھا اور بالکل ویران جنگل کھانا پینا جو کچھ تھوڑا بہت لے کے آئے ہوئے تھے پانی ختم ہو گیا تو دودھ پیتے بچے تھے اسماعیل علیہ السلام تو حضرت حاجرہ علیہ السلام جب ان میں بیٹے کو پیاس لگی رونے لگی کہ اب مجھے پانی چاہیے تو وہ وہاں پہ انہوں نے یعنی کہ صفا ایک جگہ جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں سے وہ بھاگتی جاتی اوپر وہ بہت یعنی اونچائی پہ جا کے وہاں پہ کھڑی ہو کے دیکھتی چاروں طرف نظر دوڑاتی کہ کہیں پہ پانی نظر آ جائے وہ لے لیں یا کوئی قافلہ کوئی بندہ نظر آ جائے پھر وہ ان کو بیٹے کی آواز آتی رونے کی پھر بھاگتی ہوئی وہ واپس آتی پھر دیکھتی بیٹا ٹھیک ہے پھر واپس بھاگتی بے چین ہو کے جاتی کہتی شاید کوئی بندہ نظر آ جائے شاید کوئی پانی کھانا نظر آ جائے تو اس طرح بے چین ہو کے بھاگتی جاتی اور واپس آتی اور 7 چکر انہوں نے لگائے اور ان کے 7 چکر کیوں تھے ان کی وہ فرمانبرداری کہ جب ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام سے بار بار پوچھ رہی ہیں آپ ہمیں یہاں جنگل میں کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں اس ویرانے میں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جواب نہیں آیا تو وہ ایک دم ان کو آخری ٹائم میں خیال آیا کہ یہ اللہ کا حکم ہوگا تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تب بھی ابراہیم علیہ السلام خاموش تو حاجرہ علیہ السلام نے خود فرمایا تو پھر ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اور یہ کہا اور صبر و استقامت کی ایک مثال بن کے وہاں بیٹھ گئی میری پیاری بہنوں تصور بھی ہم لوگ تصور جو کرتے ہیں نا کبھی ہم لوگ نیکیوں میں تصور کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ بہت نیک بن جائیں ہم حج کر رہے ہیں عمرے کر رہے ہیں ہم بہت کمال یہ اس بات کا ہم تصور نہیں کر سکتے نہ ہمارے ہسبینڈ نہ ہم نہ ہماری اولادیں تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کا حکم آئے اور ہمیں کسی جنگل میں چھوڑ کے آ جائیں بہرحال اللہ میاں بھی علیم اور خبیر ذات ہیں وہ کسی کو اس طرح آزماتے بھی نہیں ہیں وہ اللہ کے نبی تھے برگزیدہ پیغمبر تھے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ آزمائش ڈالی تھی اور اللہ کو پتہ بھی تھا کہ وہ اس آزمائش پہ پورے اتریں گے بات کہنے کی یہ ہے کہ اس عورت کا وہ بھاگنا اللہ کو اتنا پسند آیا باقی آپ کو پھر وہی بات آتی ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ پھر جب 7ویں مرتبہ وہ واپس آئی تو دیکھا کہ انہوں نے جب رو کے ایڑی مر رہے تھے اس ایڑی کے نیچے سے پانی نکل آیا اور وہ پانی بہ رہا بالکل رک ہی نہیں رہا وہ حیران ہو کہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے زمزم رک جا تو پھر اس پانی کا نا وہ رک گیا اور لیکن رکا اس طرح تو نہیں لیکن یہ کہ ایک تالاب کی طرح جس طرح بہنا شور اور باہر آ رہا تھا یعنی کہ پھر بعد میں لوگ آئے وہاں پہ گزرے بہت ایک قافلہ گزر رہا تھا انہوں نے ان کو بھی پانی راستے میں چاہیے تھا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پانی
परेशानी है, एक औरत है, एक बच्चा, उन्होंने पानी की वजह से लोग अक्सर जो है ना पड़ाव डाल देते थे, आबादियाँ हो जाती थी, तो वहाँ पे उन्होंने उसका कुआँ वगैरह बना दिया सिस्टम, और आज तक आप देखें कि वो पानी किस तरह शफ़ा देता है लोगों को, और कितना पानी आज तक वो निकलता है। बंदा वहाँ पे सऊदी अरब में देख के भी हैरान हो जाता है कि कितनी दुनिया लेके जाती है और कितना इसका इकराम और इज़्ज़त है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहरहाल उनकी ये अदा अल्लाह को कितनी पसंद आई, उनका ये भागना, उनका ये परेशान होना अल्लाह को इतना पसंद आ गया कि अल्लाह ताला ने उन सफ़ा और मरवा को शाइर बना दिया इस्लाम के, और उनके दरमियान उसी तरह साई की तरह दौड़ना, यानी औरतें बहुत तेज़ नहीं दौड़ेंगी, मर्द दौड़ते हैं, और औरतें भी भागती हैं, जाती हैं, पढ़ती ज़िक्र करती हुई, और वो सफ़ा और मरवा के दरमियान वो पूरे चक्कर, अब तो वो खूबसूरत टाइलें और एसी और क्या कुछ वहाँ पे है, उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इंशाअल्लाह जो अभी भी उम्रे की सआदत हासिल करेगा, हज की सआदत हासिल करेगा, वो जब वहाँ सई करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी बेहतरीन अजर अता फरमाएँगे। और दूसरी बात ये है कि आज भी कोई औरत कुर्बानी दे देती है, उस लेवल की ना हो, छोटे लेवल की हो, हस्बैंड कह रहे हैं कि भई तुम जो है ना, बाज़ औक़ात औरतें जो है ना बहुत परेशान हो जाती हैं, क्योंकि मियाँओं का ये होता है कि खुद बेशक बहुत नेक ना भी हों, बहुत दीन का ना हो, लेकिन ये चीज़ उनको होती है कि हमारी बीवियाँ जो बापर्दा हों, मेकअप ना करें, बाहर ना निकलें, लोग ना देखें, घुलना-मिलना ना हो कज़न्स के साथ, बहनों इस तरह। तो इन चीज़ों में कम से कम जो काम हुक्म शरीयत का है, रब का हुक्म है, मियाँ कह रहा है, बेशक वो जिस भी वजह से कह रहा हो, वो अपनी दुनियावी खुददारी की वजह से कह रहा हो, दीन की वजह से कह रहा हो, गैरत की वजह से कह रहा हो, हम क्या उस पे अमल नहीं कर सकते? जिसमें हमारी भलाई ही भलाई है, वहाँ भी हम हस्बैंड से लड़ते हैं, अच्छा ये पाबंदियाँ लगाते हैं या हमें रोकते हैं। नहीं मेरी प्यारी बहनों, याद रखिए, अगर हस्बैंड हमें किसी काम से रोक रहे हैं, दीनी काम के लिए कर रहा है, वो जिस वजह से भी कर रहा है, हमें खुश होना चाहिए कि कोई बताने वाला है, और याद कर लेना चाहिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, जंगल में वीरान तुम रह जाओ और वो रह गई, और हमें क्या, हमें ये कभी कहेंगे? नहीं कहेंगे। हमारे हस्बैंड कितने भी नेक हो जाएँ, कभी कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे, जितने भी बुरे हो जाएँ, बीवी और बच्चे को कहीं नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमें भी उनकी इताअत इन मामलात में, दीनी मामले में, अगर कोई कहता है कि नमाज़ पढ़ो, कोई हस्बैंड कहता है, किसी खुशकिस्मत औरत का हस्बैंड उसको ये कहता है कि तुम दीन के कामों पे अमल करो, तो उसको कर लेना चाहिए, और सोच लेना चाहिए कि देखो मेरे हस्बैंड जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह मुझे दीन की दावत दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फमन हज्जल बैता व इतमरा, और कोई कुर्बानी दे दी, तो हो सकता है अल्लाह पाक उसको कबूल कर लें। हमारे शायर तो नहीं बनेंगे, लेकिन अल्लाह पाक कदरदान, ये शाकिरुन आखिर में क्यों कहा है? अल्लाह पाक कदरदान है। हम औरतें, आज की औरतें अगर हज़रत जितना नहीं भी करें ना, हज़रत आयशा, खदीजा जितना, फातिमा जितना नहीं भी करेंगे ना, फिर भी अल्लाह ताला कदरदान है। अल्लाह ताला हमारे हिसाब से, हमारे माशरे के इलाके के हिसाब से भी देख के हमें बेहतरीन अजर दे देंगे। तो बहरहाल हज बैतुल्लाह या उम्रा, बैतुल्लाह का हज या उम्रा करें, तो फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फला जुनाह अलैहि यतव्वफ़ बिहिमा, तुम पे कोई हर्ज नहीं है कि तुम उन दोनों का तवाफ करो। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है, एक सवाल तो ये पैदा होता है कि जुनाह नहीं, कोई हर्ज उसमें नहीं, कोई गुनाह, इसका क्या मतलब हुआ? हम तो जब भी हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, हमें ये बताया जाता है कि ये सही करना जो ये वाजिबात में से है, ये वाजिब है, इसके बगैर उम्रा नहीं होता, इसके बगैर हज नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि ये बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कुरान करीम में हम पढ़ेंगे, शायद किसी और जगह पे उसकी वाजिब होने की दलील आ जाए, मेरे पास तो अभी नहीं है, लेकिन हज और उम्रे के दरमियान साई करना वाजिब है। ये लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उससे पहले जो मक्का मुकरमा में बुत परस्ती आम थी और सब कुछ, तो उस वक़्त ये सफ़ा मरवा की जो पहाड़ियाँ थी, सफ़ा की पहाड़ी के ऊपर, मरवा की पहाड़ी के ऊपर मुशरिकीन मक्का ने बुत रखे हुए थे। एक असाफ और एक नाइला, इस तरह उनके नाम थे, और वो वहाँ पे जाके उनकी पूजा करते थे और चक्कर वगैरह काटते थे वहाँ पे और इस तरह। तो जब ये हुक्म आया कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि यहाँ पे जो है ना सही करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे सही करनी वाजिब है, ठीक है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वाजिब है, तो फिर सहाबा किराम के दिल में ख़्याल आया कि कहीं गुनाह तो नहीं, मतलब अभी उनको पता चला कि हज और उम्रे का एक रुकन है, हमें ये करना है, तो उनके दिल में ख़्याल आया कि यहाँ तो वो रखे हुए थे। अच्छा, एक्सट्रीमली सॉरी, इस वक़्त शायद इतना कुछ वाज़ेह हुक्म नहीं आया होगा, लेकिन उनको ये पता होगा कि सही करनी है, क्योंकि जो जब भी सहाबा किराम को कोई हुक्म मिलता था ना कि ये चीज़ वाजिब है, ज़रूरी है, तो फिर वो इस तरह की उनकी चीज़ नहीं आती थी। पहले ही मतलब जो ही उनके खाना काबा की साइड पे नमाज का हुक्म आया, हज उम्रे का तरीकाकार हुआ, तो उनको पता चला होगा कि यहाँ पे सही की जाती है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी हज होता था, उम्रा होता था। तो तब उनके ज़हन में ये ख्याल आया कि ये जो बुत थे, उनकी वजह से लोग यहाँ पे करते थे, तो अब ये हम नहीं, हम यहाँ पे चक्कर नहीं काट सकते, या हम ज़्यादा नहीं जा
सकती, क्योंकि बुतों की वजह से इन पहाड़ियों की ताज़ीम थी, इन पहाड़ियों की बज़ाते खुद कोई ताज़ीम नहीं थी। तो अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल कर दिया कि फ़ला जुनाह अलैहि, कोई हर्ज नहीं है, यानी वो बुतों की वजह से तो था, उन लोगों ने करना वो कर रहे थे, लेकिन हमने जो इज़्ज़त इसको दी है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत हाजरा की कुर्बानियों की वजह से है। मैं जितनी तफ़सीरें पढ़ती हूँ उनमें से एक तफ़सीर में ये भी लिखा हुआ है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो कुर्बान करने के लिए रखा था, वो भी मरवा पहाड़ी पे रखा था। लेकिन मैं जब गई थी तो मुझे एक अंकल ने ये बताया था, उन्होंने हमें वहाँ पे दिखाने के लिए लेके गए थे, तो एक पहाड़ी उन्होंने एक ऊँची जगह बताई थी कि यहाँ पे उन्होंने बेटे को जो है ज़िबा करने के लिए लाया था और फिर दुम्बे की कुर्बानी हुई। इसलिए मैं इसमें कन्फर्म नहीं हूँ कि कौन-सी जगह है, आप खुद पूछ सकते हैं, तहकीक कर सकते हैं इस पे। तो ये कि एक तफ़सीर में ये लिखा हुआ है कि मरवा की जगह पे भी कुर्बानी, बहरहाल जो भी है, ये जो सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों पे जो सई है, ये सब इब्राहीम हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की याद में है और उनकी कुर्बानी की खुशी में। वमन ततव्वा खैरन, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो नेकी तुम खुशी से करो, मतलब कि जो एक्स्ट्रा तुम करो, मिसाल के तौर पर नमाज फ़र्ज़ है, ठीक है, पूरी उसकी रखते हैं, उसके अलावा हम लोग तहज्जुद और इशराक चाश्त अवाबीन पढ़ लें, और किसी का हमने जो है ना तनख्वाह जो है 1000 रुपए देनी है, उसको हम 1200 रुपए दे दें, किसी गाड़ी वाले को, किसी रिक्शे वाले को, किसी सब्ज़ी वाले को अगर हम उसको एक्स्ट्रा दे दें, यानी कि ततव्वुअ खैरन, कोई भी खुशी नेकी से करे, जो खुशी से कोई नेकी करे, यानी कि जो अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है वो तो ज़रूरी है, लाज़मी है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई काम कर लेना, कोई भी काम कर लेंगे, जैसे उम्रा तो वाजिब नहीं होता, कोई उम्रा कर ले, एक मरतबा हज करके दूसरा हज वाजिब नहीं होता। यानी आप खुद समझ लें कि कोई भी काम ऐसा जो शरीयत ने ज़रूरी करार नहीं दिया, हम उसको करते हैं, तो अल्लाह ताला उसके लिए फरमा रहे हैं कि ये फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, कोई खुद जानबूझ के कोई और काम कर लेगा, कोई और नेकी कर लेगा, अल्लाह कदर करने वाले हैं। कभी मत सोचें, हम कहते हैं यार इतना ज़ाया कर देते हैं हम सब कुछ, मैंने इतना कुछ किया अपनी फैमिली के लिए, उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। फैमिली के लिए क्यों कर रहे थे? हमने अल्लाह के लिए करना है, और अल्लाह तो बहुत कदरदान है, वो तो कभी ज़ाया नहीं करेगा मेरी प्यारी बहनों, आपकी कुर्बानियों को ज़ाया होने ही नहीं देगा। आप बेशक सास-नंदों की बातें बर्दाश्त करती हैं, उनका ख़्याल कर रखती हैं, सास-ससुर की खिदमत करती हैं, बहुत एक्स्ट्रा, यानी हस्बैंड का भी बहुत ज़्यादा रवैया वो नहीं अच्छा किसी के साथ वो बर्दाश्त करती, किसी तरह की नेकी करती हैं तो अल्लाह कदर करने वाला, अल्लाह की रज़ा बना ले अपनी ज़िंदगी का मकसद, सारी परेशानियाँ, टेंशनें ख़त्म हो जाएँगी। किसने क्यों नहीं दिया, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया, मैंने उसको इतना दिया था, उसने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। मेरी प्यारी बहनें, जब तक हम देंगे ही अल्लाह के लिए ना, तो हमें किसी के देने दिलाने की फ़िक्र ही नहीं होगी, क्योंकि जब हम रब के पास जाएँगे, तो वो हमें बहुत बेहतरीन करके देगा, अलीम, वो जानता है कौन मेरे लिए कर रहा है और कौन अपने लिए कर रहा है, कौन नमोदो नुमाइश के लिए कर रहा है, कौन दूसरों के लिए कर रहा है, हर बात जानता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।